Assalamu alaikum students. First of all, I would like to introduce myself. My name is Khurram Zubair and I would like to extend my warmest wishes to you all on the beginning of our new classes pre-9 after mid-year exam. As we all know that beginning of something new is always exciting here. Here I am talking about the new classes pre-9, a next chapter of your life means a lot of challenges and it depends on you that how you make the strongly to overcome the challenges. Being a teacher, I strongly feel that each of you is different and unique, but just wanted to say you never compare yourself to anyone because everybody is unique. You cannot be good or perfect in every situation. So always compete with yourself, learn from your mistakes, and always keep practicing, keep learning, and keep smiling. Now, we shall discuss our first lecture, chapter number 3, Set Theory. In this chapter, we understand mathematics as the study of pattern, structure, and relationships. Identify sets and apply operations on three sets: subsets, overlapping sets, and disjoint set using Venn diagram. Solve problems on classification and cataloging by using Venn diagrams for scenarios involving two sets and three sets and further applications of sets. Apply concept from set theory to real world problems such as an demographic classifications, categorizing product in shopping mall and music playlist by genre. Verify and apply properties, laws of union, and intersection of three sets through analytical and Venn diagram and method. Explain product, binary relations, and its domain and range. Also recognize that a relation can be represented by table, order pair, and graph. Our first topic is mathematics as the study of pattern, structure, and relationship. सबसे पहले हम सीक्वेंस जो है उसमें जो फिबोनाची सीक्वेंस है इसको डिफाइन करेंगे. डेफिनेशन इसकी है कि द सीक्वेंस फॉलो द रूल दैट ईच नंबर is equal to the sum of preceding two numbers. The Fibonacci sequence begins with the following 14 integer 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 and 233. अगर हम इस सीक्वेंस को देखते हैं कि ये सीक्वेंस कैसे बनती है तो लेट्स सी एग्जाम्पल को देखें. इसमें सबसे पहला जो नंबर हमारे पास है वो 0 है. उससे जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है वो है 1. नेक्स्ट नंबर जो है वो भी 1 है. तो अब देखें 0 + 1 आंसर हमारे पास आया 1. अब जो आंसर हमारे पास 1 आया उससे जो अगली टर्म हमारे पास है वो है 2. तो जो 2 हमारे पास आंसर है नेक्स्ट टर्म का, तो उस 2 में हमने प्रीवियस टर्म को ऐड किया तो हमें नेक्स्ट नंबर मिला 3. तो अब जो 3 में हमने उससे पिछली प्रीवियस टर्म को ऐड किया तो हमें नेक्स्ट नंबर मिला 5. इसी तरह 5 में हमने उससे जो पिछली प्रीवियस टर्म उसको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 8. इसी तरह हमने 8 में उससे जो प्रीवियस टर्म को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 13. तो ये एग्जाम्पल हमें बताती है कि जब भी आपने फिबोनाची सीक्वेंस तब बनती है जब उससे पिछली जो प्रीवियस टर्म है हम उसको उसमें ऐड करते हैं तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो एक फिबोनाची सीक्वेंस का रिज़ल्ट आता है. तो इसके बाद
फिबोनाची सीक्वेंस के बाद इसकी जो एग्जांपल है, अगर आप देखें सनफ्लावर को जो हेड होता है उसमें जो स्पाइरल है उसमें भी यही सीक्वेंस यूज़ होता है। उसका जो पैटर्न्स ऑफ सीड है सनफ्लावर का, उसमें भी सेम फिबोनाची सीक्वेंस का जो ऑर्डर है वो यूज़ होता है। अगर हम इसके स्पाइरल्स की इनको काउंट करना चाहते हैं, अगर हम देखें कि जो स्पाइरल है ये कंसिस्टेंट मैनर के साथ आपस में अगर हम इनको काउंट करना चाहें तो हम ऑलवेज जो है वो फिबोनाची जो नंबर है हमें वो मिलेंगे इसमें। तो एनी नंबर इन द फिबोनाची सीक्वेंस इज कॉल्ड अ फिबोनाची नंबर। हर वो नंबर जो फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर आए उसको हम फिबोनाची नंबर बोलते हैं। लेट्स इंटीजर्स, a whole number, not a fractional number that can be positive, negative or zero। वो तमाम होल नंबर जो कि फ्रैक्शनल नंबर ना हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, हम उनको इंटीजर बोलते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर डिनोटेड जी। सेट ऑफ इंटीजर को हम जी से डिनोट करते हैं। हमारे पास एक नीचे एग्जांपल देखें, हमने सेट को हमने लिखा हुआ है नीचे कि जी जो सेट है ये इसमें नेगेटिव भी होते हैं, इसमें ज़ीरो भी होता है, इसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो ऐसा सेट जिसमें नेगेटिव भी हो, ज़ीरो भी हो, पॉजिटिव भी हो, हम उस सेट को इंटीजर बोलते हैं। याद रखिएगा इसमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं होंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सबसे पहला है क्लियर अंडर एडिशन। क्लियर अंडर एडिशन क्या है? अगर हम इंटीजर के सेट में से कोई दो नंबर हम पिक करते हैं, एनी टू नंबर, उन दोनों को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, उनका जो आंसर आए अगर वो आंसर भी उसी सेट से बिलोंग करे, हम कहते हैं कि इस पे क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर चुकी है, अंडर एडिशन। लेट्स एग्जांपल, वन इंटीजर में से हमने लिया, एक और नंबर हमने लिया उसमें से टू, तो 1 + 2 इसका आंसर आया 3। 3 भी इंटीजर से बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 इन दोनों पे क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अंडर एडिशन। तो सम ऑफ टू इंटीजर यील्ड एन अदर इंटीजर इन द सेट। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटीजर के हवाले से। उसके बाद एसोसिएटिव, आपको पता है कि एसोसिएटिव उसमें एडिशन में जो एसोसिएटिव होता है, कोई से 3 नंबर लेने हैं हमने, उनमें ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज करना है। फर्स्ट 2 में ब्रैकेट यूज़ करेंगे, 1 + 2 + 3, उसका आंसर देखें, और फिर 1 + 2 + 3 इसका आंसर देखें। अगर दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, हम कहते हैं कि इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब आइए चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है, अगर हम उसको किसी भी नंबर में ऐड करें, उसके ऐड करने से उस नंबर को कोई फ़र्क ना पड़े। तो ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट इन द सेट। ज़ीरो इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट है, अगर हम उसको किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो उसके ऐड करने से उस नंबर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ज़ीरो इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट देखें जी, इसके बाद हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी इसकी है वो है इन्वर्स फॉर ईच इंटीजर। तो इन्वर्स के हवाले से ये है कि एक नंबर का इन्वर्स ऐसा नंबर होगा, अगर हम उस नंबर को उस दूसरे नंबर में ऐड करें तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी है जो एडिशन की है, यानी कि ज़ीरो आंसर आए। तो अगर हम 3 में -3 को ऐड करें तो इसका आंसर हमारे पास आता है ज़ीरो। तो ज़ीरो क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है, तो हम कह सकते हैं कि 3 का इन्वर्स -3 है। तो फॉर एवरी इंटीजर ए, लेट्स एग्जांपल, देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव इन्वर्स एंड सच दैट ए + बी = 0, कि यानी कि ए का इन्वर्स बी तब होगा जब उनका आंसर ज़ीरो आएगा। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज, नंबर 1 क्लियर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड नंबर 4 इन्वर्स की प्रॉपर्टी, ये चारों प्रॉपर्टी
अगर किसी सेट पे होल्ड करती हैं तो वो ग्रुप बनाता है। डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है कि एज द सेट ऑफ इंटीजर फॉलो ऑल दीज फोर प्रॉपर्टीज सो इट इज़ अ ग्रुप। तो इट मीन जो इंटीजर है ये ग्रुप है। अ सेट विच फॉलो ऑल फर्स्ट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पैटर्न्स। A pattern in math is a sequence of numbers, shapes, colors, or pictures that repeat in a specific order based on a rule. पैटर्न एक ऐसा मैथ में एक ऐसा सीक्वेंस है कि जिस सीक्वेंस से हमें एक ख़ास एक ऑर्डर मिलता है। जैसा कि पैटर्न ए है, 7 के बाद 10 आ रहा है, उसमें 3 का डिफरेंस, उसमें 3 ऐड हो रहा है। तो 10 के बाद 13, फिर 3 की एडिशन हो रही है। 13 के बाद 16, फिर 3 की एडिशन हो रही है। याद रखिएगा कि जब भी पैटर्न होगा तो उसमें सेम नंबर, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो एडिशन के हवाले से सेम नंबर हो सकता है कि जो पैटर्न आप बना रहे हैं वो सब्ट्रैक्शन के हवाले से सेम नंबर्स की सब्ट्रैक्शन हो रही हो सकता है कि वो डिवीजन के हवाले से हो सकता है कि वो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से तो पैटर्न में ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें एडिशन ही होनी है, उसमें सब्ट्रैक्शन ही होनी है, उसमें डिवीजन ही होनी है, उसमें मल्टीप्लिकेशन ही होनी है। तो पैटर्न किसी भी तरह का सेम पैटर्न हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ सेट ऑफ नंबर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एग्जाम्पल, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17। इनमें देखें सभी में सेम सीक्वेंस बन रही है, तो सेम इनके 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं ये एक सीक्वेंस है हमारे पास है। इसी तरह नीचे 2 एग्जाम्पल और लिखी हुई है, 2, 4, 6, 8। इनमें भी देखें 2 का डिफरेंस। उसके बाद नीचे 1, 8, 15, 22, 29, इनमें 7 का डिफरेंस है। तो ये सारी सीक्वेंस है, सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक सीक्वेंस का। एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज द सीक्वेंस वेयर द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन एनी टू सक्सेसिव टर्म। अरिथमेटिक सीक्वेंस तब बनेगी जब आप किसी भी दो कंसेक्टिव वैल्यू को माइनस करें और उनका जो आंसर आए वो सेम आए। एन अरिथमेटिक सीक्वेंस कैन बी नाउन एज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। जैसा कि एग्जांपल नीचे दी गई है, द सीक्वेंस देखें 1 के बाद 6 के बाद 11 के बाद 16। अगर हम 1 जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म है, 6 हमारे पास सेकंड टर्म है। अगर हम 6 में से 1 को माइनस करें हमें 5 मिलता है। 11 में से 6 को माइनस करें हमें उसका आंसर भी 5 मिलता है। 16 में से 11 को माइनस करें उसका आंसर भी हमें 5 मिलता है। तो इट मीन हम किसी भी टू कंसेक्टिव वैल्यू को अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर सेम रहेगा, तो इसे हम कहते हैं कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो इसके बाद ये जो आप माइनस करते हैं इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। द कॉमन डिफरेंस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स इन द सीक्वेंस। दो दो वैल्यूज़ का जो माइनस करना है सेम कंसेक्टिव वैल्यू का, जो मुसलसल लगातार आ रही हैं, इनकी बात कर रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को कैसे निकालेंगे? हमें 3 पॉइंट्स का जानना ज़रूरी है। नंबर 1, चेक इफ़ इट इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास मौजूद है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस भी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे, उनका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। हम कोई सी दो कंसेक्टिव वैल्यू को पकड़ेंगे, उनको माइनस करेंगे, उनका आंसर देखेंगे। फिर कोई और दो कंसेक्टिव वैल्यू, कंसेक्टिव मीन जो मुसलसल लगातार आ रही हैं, गैप ना हो बीच में, उनको माइनस करेंगे, उनका डिफरेंस चेक करेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम है तो इट मीन ये अरिथमेटिक सीक्वेंस तो है। तो मेक श्योर द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज़ कांस्टेंट। तो इसके बाद नंबर 2, तो हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो हमने निकाल लिया। तो यानी कि A2 सेकंड टर्म को कहते हैं, A1 फर्स्ट को कहते हैं, या A2 में से A1 माइनस कर लें। A3 थर्ड टर्म को कहते हैं, A3 में से A2 माइनस कर दें। इसी तरह हम करते जाएंगे। अगर इनका आंसर सेम आता है तो ये कॉमन डिफरेंस हमारे पास होगा। अब उसके बाद nth टर्म का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। nth टर्म का फार्मूला है an इक्वल A1 प्लस n माइनस 1 d। A1 इसमें फर्स्ट टर्म है, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है,
n हमारे पास टर्म पोजीशन है। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चन इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, द सिक्स टर्म, द 10th term and the nth term of each of the given arithmetic sequence। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1, 6, 11, 16, 21। इस क्वेश्चन में हमने चार चीज़ें फाइंड करनी हैं। एक तो कॉमन डिफरेंस जो कि डी है, दूसरा A6 टर्म फाइंड करनी है, उसके बाद हमने A10 10th टर्म फाइंड करनी है, और लास्ट पे हमने an टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिसके लिए हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो A1 इस सीक्वेंस की 1 है, इसके बाद A2 6 है। हम कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि कोई टू कंसेक्टिव वैल्यूज़ का जो डिफरेंस होता है हम उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यूज़, तो 1 और 6 एक साथ आ रही हैं, हम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। हम A2 यानी कि जो 6 सेकंड टर्म है उसमें से हम फर्स्ट टर्म जो A1 1 है उसको माइनस करते हैं, तो हम D इक्वल A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 6 है, A1 हमारे पास 1 है, तो 6 माइनस 1 हमारे पास आंसर आ गया 5। अब इसके बाद हमारे पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, A1 जो कि 1 है, और D हमारे पास 5 भी मौजूद है। हमने A6 फाइंड करना है, जिसके लिए हम सबसे पहले आते हैं AN जो फार्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस का, AN इक्वल A1 प्लस n माइनस 1D। उसमें हम पुट n इक्वल 6 करेंगे क्योंकि हमने 6 टर्म फाइंड करनी है। तो A6 इक्वल A1 प्लस n की जगह पे 6 आ गया, 6 माइनस 1 इंटू डी, तो 1 माइनस किया तो 5D। तो A6 हमारे पास आ गया है A1 प्लस 5D। अब हम उसी A6 में A1 जो कि प्लस 5D के इक्वल है उसमें हम D की वैल्यू जो कि 5 हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है वो पुट करेंगे। तो A6 इक्वल 1 प्लस 5 इंटू 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, तो 25 और 1 मिलके 26 हो गए। तो 6 टर्म हमने निकाली है वो है 26। इसी तरह हम सेकंड जाएंगे 10th टर्म की तरफ। 10th टर्म में वही चीज़ आएगी कि AN इक्वल A1 प्लस n माइनस 1D। तो n इक्वल 10 पुट किया हमने। तो अब हम देखें कि n की जगह पे हम जब हमने 10 लगाया तो 10 माइनस 1 9D, तो इट मीन हमारे पास आ गया A1 प्लस 9D। अब हम A10 जो कि हमारे पास वैल्यू है A10 इक्वल A1 प्लस 9D, इसमें हम A1 की जगह फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी, D की जगह पे 5 आ जाएगा, तो 9 5 ज़ार 45, 1 प्लस 45, तो A10 हमारे पास 46 टर्म आ गई। अब हम इसकी जो तीसरी चीज़ लास्ट वाली चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं वो है AN का फार्मूला हमारे पास है AN इक्वल A1 प्लस n माइनस 1D। तो A1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, D की वैल्यू हमारे पास 5 है, और n टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे हम n ही रखेंगे। तो AN इक्वल आ गया 1 प्लस n माइनस 1D। तो वैल्यू पुट करें, A1 की जगह 1 लगाया, n की जगह n ही आ गया, तो D की जगह 5। तो अब क्योंकि 5 और n माइनस 1 दोनों ब्रैकेट में हैं तो मल्टीप्लाई करें, पहले n 5 से होगा तो 5n आ जाएगा, और फिर 1 5 से होगा तो 5, तो 5 1 एज इट इज़, 1 माइनस 5 माइनस 4। तो इस तरह AN टर्म हमारे पास आ गई है 5n माइनस 4। इसके बाद इसका हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें गिवन है वो -6, -3, 0 और 3 है। अब इसमें भी हम उसी तरह लेट करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो -6 है, सेकंड टर्म हमारे पास -3 है। कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं जो कि हमारे पास आ जाएगा D इक्वल A2 माइनस A1। A2 की जगह हमने A2 सेकंड टर्म की वैल्यू -3 लगाई, फिर माइनस A1 की जगह हमने -6। अब हमारे पास क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस 6, -3 प्लस 6 इक्वल टू 3,
ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है 3 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, अब हमने वही टर्म 6 टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है और nth टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले अब हम चलते हैं A6 टर्म की तरफ। A6 इक्वल हमने पहले निकाल लिया, उसी तरह कि A6 जो आता है वो an का जो फार्मूला है उसमें हम a1 प्लस n माइनस 1d उसमें n6 लगाएंगे, तो A6 इक्वल हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस 5d। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर हमने 6 टर्म फाइंड करनी है तो उस d की जो वैल्यू d के साथ जो मल्टीपल है वो एक कम होगा, यानी कि वो 5d होगा। इसी तरह अगर हम a10 फाइंड करना चाह रहे हैं तो a1 प्लस 9d होगा। अगर हम कोई और टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम फाइंड करना चाह रहे हैं a15, तो A15 इक्वल A1 प्लस 14D आएगा। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम A30 फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उस A30 इक्वल आएगा A1 प्लस 29D। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हम A6 की तरफ आते हैं। A6 इक्वल हमारे पास आएगा A1 प्लस 5D। A1 की वैल्यू हमारे पास -6 आई, D की वैल्यू हमारे पास 3 आई, 5 3 आर 15, 15 माइनस 6 इक्वल 9, तो A6 हमारे पास 9 के इक्वल आ गया। इसी तरह हम A10 फाइंड कर लेंगे। A10 इक्वल A1 प्लस 9D, D की वैल्यू 3, 9 3 आर 27, 27 माइनस 6 21। इसी तरह हम AN फाइंड कर लेंगे। an इक्वल a1 प्लस n माइनस 1, an इक्वल a1 प्लस n माइनस 1 d, पुट a1 इक्वल -6, d इक्वल 3, n इक्वल टू n। तो हमने an इक्वल हमारे पास आ गया -6 प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई किया 3n, 3 को 1 से किया तो 3, 3n -6 -3 -9, तो an टर्म हमने निकाल ली जो कि 3n माइनस 9 आ चुकी है। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन को सारे को मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका है, अगर हम देखें तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ़ इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस A1 47, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 47 है, A12 वो हमारे पास -8 है, देन फाइंड A30, तो देन फाइंड A30, हमने A30 फाइंड करना है। तो A1 गिवन में हमारे पास A1 इक्वल टू 47, A12 इक्वल टू -8, A30 हमने फाइंड करना है। वी नो दैट A12 इक्वल A1 प्लस 11D। अभी पिछले क्वेश्चन में ये बात मैंने बताई थी कि अगर हम जो भी टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं, डी के साथ जो भी मल्टीपल उसका होगा वो ए कम होगा। तो A12 इक्वल A1 प्लस 11D। इसमें हम A1 पुट करेंगे 47 और D पुट करेंगे, D हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले हम D निकालेंगे। प्रोसीजर पहले समझ लें। A30 हमने फाइंड करना है, A1 47 हमें गिवन है, A12 हमें -8 गिवन है, A1 की वैल्यू भी हमें पता है 47। अब A30 हमें पता है कि वो होता है A1 प्लस 29D। उसमें दो चीज़ें हमें चाहिए, एक तो A1 चाहिए और एक D चाहिए। A1 हमारे पास मौजूद है, हम A12 में से D निकालेंगे और वो हम फिर A30 वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। तो A12 इक्वल हमारे पास आ गया A1 प्लस 11D। इसमें देखें A1 हमारे पास 47, A12 हमारे पास -8, तो A1 की जगह हमने A12 की जगह पे -8 लगाया, A1 की जगह पे 47 और हमने फिर D वाली पे D हमने फाइंड करना तो D की जगह D आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, तो 47 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो माइनस का 47 एंड माइनस का 8 हमारे पास 55, 11 डी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो गया, तो डी हमारे पास -5। अब हमने A30 फाइंड करना था, तो A30 इक्वल आ गया A1 प्लस 29D। तो डी की वैल्यू -5, 29 मल्टीप्लाई -5 माइनस का 145, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 47 में से 145 जो है वो माइनस का है, तो A30 हमारे पास -98 के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस आपने अच्छे से करने हैं, तैयार करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें, मैंने इसका जो 3 और पार्ट 4 है वो नहीं किया सॉल्व, तो काइंडली आप जो है इसका पार्ट 3 एंड 4 वो खुद से करेंगे। और इसके साथ साथ आप जो तमाम डेफिनेशंस हैं और क्वेश्चंस हैं जो इस लेक्चर में आपको
करवाए गए हैं, ये तमाम के तमाम आप अपनी नोटबुक पे नोट ज़रूर करेंगे। और जी, थैंक यू सो मच।